وقوله الحق وأصدق الصادقون
بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے قل کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. کہ میرے حبیب کبیدہ خاطر کیوں ہوتے ہیں؟ اگر یہ آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے تو نہ کریں. ان سے کہہ دیجئے کہ ہماری اور تمہاری نسبت کے لیے ہماری نسبت تمہاری طرف ہے. جو عہدہ، وہ مقام جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے رسالت کا، اس کی گواہی کے لیے وہ اللہ کافی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. توجہ چاہنا عزیزان محترم، وہ کافی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. تو اللہ نے اپنی وضاحت کر دی. گواہی کس کی دی جا رہی ہے؟ رسول کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے. تو اب رسول خود اپنے لیے گواہ نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ گواہی دے رہا ہے. سب مانتے ہیں اللہ کو، وحدہ لا شریک کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں. اختلاف اس بات میں ہے کہ ومن عنده علم الکتاب کا مالک کون ہے، اس جز کا مصداق کون ہے. تو تمام علماء شیعہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس سے مراد ائمہ علیہم السلام کی ذات مبارکہ ہے. اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، لیکن چشم زدن میں تخت بلقیس کو لا کے سلیمان کے قدموں میں ڈال دیا. دیر نہیں لگی، کہاں ملک سبا اور کہاں سلیمان پیغمبر. ایک مرتبہ جیسے ہی سلیمان نے کہا کون ہے اس تخت کو میرے لیے لے آئے، تو آصف ابن برخیہ کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا. توجہ چاہتا ہوں، اور آصف نے چشم زدن میں تخت بلقیس کو لا کے سلیمان کے قدموں میں ڈال دیا. تو اگر جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اگر وہ کوئی معجزہ دکھا دے تو تعجب نہ کرنا ہے، صلوات پڑھتے ہیں. بعد وفات رسول ایک آیا عربی مدینے میں، اور انت کہتا ہے کہ میرے پاس رسول کا دیا ہوا پروانہ ہے، جس میں رسول نے خود پہلے فرمایا تھا کہ اگر تو اپنے قبیلے والوں کو مسلمان کر دے گا، بلکہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آنے والے کا نام ابو سمسام ہے، آنے والے کا نام ابو سمسام ہے. اور ابو سمسام جب آیا تھا مدینے میں تو پیغمبر اسلام کے سامنے 4 سوال رکھے تھے. کہا تھا یا رسول اللہ اس سوال کا جواب دے دیجیے گا تو ہم دائرہ اسلام میں آ جائیں گے، اور اگر جب رسول اسلام نے اس کا جواب دیا دائرہ اسلام میں آ گیا، اسلام کو بولتے ہیں. اب وہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر ہم اپنے قبیلے والوں کو مسلمان کر دیں تو اس میں اس کی اجرت کیا ملے گی؟ تو رسول نے کہا بتا کیا اجرت چاہے. خاموش ہے. پیغمبر نے کہا کہ 80 ناقائے کافی اس کو کریں گی، زر جواہرات سے لگی ہوئی. ابو سمسام نے کہا کافی ہے. پروانہ لکھ دیا گیا، علی نے لکھ دیا
अबू समसाम के नाम परवाना कि अगर कबीले वाले मुसलमान हो गए तो रसूल के वादे के मुताबिक अबू समसाम को 80 नाकाए सो कलम की दी जाएगी। अब जब कबीले वाले मुसलमान हो गए तो अबू समसाम वापस आया। जब वापस आया मदीने में तो उसे ये खबर मिली कि रसूल इस्लाम का इंतकाल हो चुका है। तो वो भटक रहा है कि भाई रसूल ने कोई अपना नुमाइंदा तो छोड़ा होगा, किसी को अपने जानशीन को मुकर्रर किया होगा। लोगों ने कहा है एक साहब, है एक साहब, तवज्जो चाह रहा है, एक साहब है, चलो भाई ले चलो हमें भी वहां। आए, रसूल का परवाना दिखाया। अब उनके हाथ पैर फूल गए, परवाना देख के हाथ पैर फूल गए। 80 नाकाए, वो भी इस खुसूसियत की कि सुर्ख रंग की हो, जर जवाहरात से लगी हुई हो, और वाकई पहले की रसूल के जमाने उस पर मुहर लगी हुई थी। उन्होंने कहा देखिए रसूल इस्लाम ने तड़के में कुछ नहीं छोड़ा, एक छोटा सा मकान, एक बागो फिदा जिसे हमने बैतुल माल के हवाले कर दिया है, और तड़के में कुछ नहीं है कि जो आपको दिया जाए। तो वहीं तो जनाब सलमान फारसी भी इसको देख रहे थे। मतलब कहते हैं करती न कर दू हक अमीर रहोगी, आधा ज्यादा कुछ नहीं है, बैठ गया उस जगह पे और उस हक की तौहीन कर रहे हो, उस जगह की तौहीन कर रहे हो। इसके बाद क्या सलमान ने बुलाया यहाँ, क्या एक शख्स है कि तुम्हारे इस वसीयत के नामे को जो रसूल ने लिखा है उसको पूरा करें। कहा कौन है वो? लेके चला, एक दरवाजे पे आया, देखा एक टाट की गोली लगी हुई है, एक टाट की गोली लगी हुई है। शमशान ने दिल में ख्याल किया टाट की गोली ये क्या रही? एक मरतबा अंदर से आवाज आई, आओ अबू शमशान, हम रसूल का वादा पूरा करते। अब शमशान ने कहा कि ना मैंने अपना नाम बताया, ना हमारी अभी मुलाकात हुई है, मेरा नाम कैसे जानते हैं? तवज्जो चाह रहा है, मेरा नाम कैसे जानते हैं? खैर अबू शमशान दाखिल हुआ, परवाने को दिया, मौला कायनात ने जोशा किया। अबू शमशान रसूल का किया हुआ वादा पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, दिन के पुजारी ताकि मदीने वाले देख ले तो जानशीन हकीकी कौन है। तवज्जो चाह रहा हूं, जानशीन हकीकी कौन है? और अली खुद नहीं है, कहे हसन अबू शमशान से किया हुआ वादा पूरा किया जाएगा, ले जाओ फला करिए में, और वहां जाने के बाद एक पहाड़ के ऊपर एक असा मारना। जब असा मारोगे तो पहाड़ फटेगा, जब पहाड़ फटेगा तो उसमें से पत्थर निकलेगा जिसके ऊपर तहरीर होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वजहुल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और शमशान को लेके उस करिए में आए, उस वादी में आए, देखा वो पहाड़ है, असा मारा, पहाड़ शिकस्ता हुआ, पत्थर निकला, पत्थर हटाया गया। तारीफ बताती है कि अब एक नाका निकला, 2 नाका निकला, 3 नाका निकला। एक मरतबा इमाम हसन कहते हैं अबू शमशान खड़ा देख क्या रहा है, नाके की मेहार को पकड़ ले, वादा पूरा हो रहा है। तवज्जो जा रहा हो, वादा पूरा हो रहा है, नाके की मेहार को पकड़ ले। अबू शमशान आगे बढ़ा, उसने नाके की मेहार को पकड़ा, अब नाके निकलते जा रहे हैं। तारीख बताती है कि ना एक कम ना एक ज्यादा, पूरे के पूरे 80 नाके, वो भी सुर्ख रंग के जोर जवाहरात से लगे हुए निकलते चले जा रहे थे। अबू शमशान इससे बेहतर सलावत पढ़े ऐसे ही हो रही
وقت کا خیال رکھا جاتا ہے, حاضری کی مجلس کا ذرا سا وقت زیادہ ہوتا ہے, لہذا اسی کو استفادے میں لاتے ہوئے ایسا موقع ملا ہے پڑھنے کا تو آپ لوگ بھی دل لگا کے سنیے تو ہم بھی دل لگا کے پڑھیں گے. ایک مل جل کے ادا کرتے آل محمد کے صلوات پڑھیں. تمہیں جانشین حقیقی کی پہچان ہے, جس کے پاس کتاب کا علم ہے, اگر وہ جامعہ میں انجام دے دے تو تعجب نہ کیجیے. اور انہی شخصیت کے لیے جو رسول کے قرابتدار ہیں, جو رسول کے عزیز ہیں, جو رسول کے اقارب ہیں, انہی کے لیے قرآن نازل کر کے کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان سے محبت کیجیے, یہ لائق محبت ہے, یہ لائق محبت ہے, ان سے محبت کیجیے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اجر رسالت ادا کرو تو ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. یہی اجر رسالت ہے, کچھ نہیں چاہتے, رسالت کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے, بس صرف یہ ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر محبت کرو گے تو رافضی ہو جاؤ. بھائی مسلمان تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر محبت کرو گے تو رافضی ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے. بھائی ہم پہ یہ الزام ہے نا, ہم پہ یہ الزام ہے کہ یہ رافضی ہیں, شیعہ رافضی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, شیعہ رافضی ہیں, یہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں, علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. ہم کیا بڑھائیں گے, ہم کیا بڑھائیں گے؟ علی کی جو وہ فضیلتیں ہیں کہ اگر آشکار ہو جائے رسول کے مطابق تو لوگ جو ہے گمراہ ہو جائیں گے, اور وہی کریں گے جو عیسیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. توجہ ہے, تو یہ الزام ہمارے اوپر ہے کہ شیعہ رافضی ہے. اگر شیعہ رافضی ہے, سب سے بڑی چیز جو یہ ہے کہ لفظ شیعہ پہ اعتراض ہے. شیعہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد, یہ اعتراض ہے ہمارے اوپر. یہ قوم جو ہے عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے, جبکہ تاریخ میں کوئی ایسا نام ہی نہیں ہے, خود ساختہ روایت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں, بلکہ تاریخ پہ تو میں کیا ہوں, میں تو ادنا کا جاہل طالب علم. تاریخ یہ کہتی ہے کہ شیعہ اس وقت تھا جب کچھ نہ تھا. فرمانا نا, شیعہ اس وقت تھا جب کچھ نہ تھا. بہت بڑا جملہ ہے, کچھ نہ تھا, حتیٰ کہ نور محمد بھی نہ تھا, اس وقت شیعہ تھا. آپ کہیں گے بھائی کیسے کیسے, تو اس کی دلیل ہے ہمارے پاس. شاید ہو سکتا ہے کہ وہ دلیل آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچے تو بات کو واضح کر دے. تو دلیل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ محرم کا مہینہ آیا تو لوگوں نے فرش ادا بچھایا. لوگوں نے پوچھا کہ فرش کس نے بچھایا, کہنے والوں نے کہا شیعوں نے بچھایا. مجمع زیادہ ہوا, شامیانہ لگایا گیا. لوگوں نے پوچھا کس نے لگایا, کہا شیعوں نے لگایا. توجہ چاہ رہا ہوں, گرمی کا مہینہ آیا, محرم گرمی کے مہینے میں پڑا, سبیل لگائی گئی. لوگوں نے پوچھا کس نے لگایا, کہا شیعوں نے لگایا. توجہ چاہ رہا ہوں, 13 رجب آئی, چراغاں ہوئی, پوچھا کس نے کیا, کہا شیعوں نے کیا. 15 شعبان آئی, چراغاں ہوا, پوچھا کس نے کیا, کہا شیعوں نے کیا. 3 شعبان آئی, چراغاں ہوئے ہوا, لوگوں نے پوچھا کس نے کیا, کہا شیعوں نے کیا. توجہ چاہ رہا ہوں, یعنی جو فرش بچھائے, جو شامیانہ لگائے, جو چراغاں کرے, وہ شیعہ ہوتا ہے. یہی تو ہے نا, وہ شیعہ ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, وہ شیعہ ہوتا ہے. آپ حدیث قصہ میں ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں, وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی
محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. توجہ چاہ رہا ہوں پوری آپ کی سماعت کی. یہ کیا کہا ہے پروردگار نے؟ وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. اپنے عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہے بیت اللہ. میرے عزت و جلال کی قسم کیا انی ما خلقت ہو، بے شک ہم نے نہیں خلق کیا. کیا نہیں خلق کیا؟ کیا آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، زمین کا فرش نہیں بچھایا. توجہ چاہ رہا ہوں، زمین کا فرش نہیں بچھایا. میں نے قمر میں روشنی نہیں پیدا کی، میں نے سورج کو منور نہیں بنایا، میں نے دریا میں روانی نہیں پیدا کی، میں نے سمندر میں کشتی کو نہیں چلایا. مگر کس کی محبت میں؟ الا 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 توجہ چاہ رہا ہوں، الا هؤلاء الخمسة الذين انہیں پانچ کی محبت میں ہم تحت الکساء جو چادر کے نیچے. بھائی شیعہ کے معنی کیا ہے؟ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ چاہنے والا، محبت کرنے والا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہ آسمان کا شامیانہ لگایا، نہ تو زمین کا فرش بچھایا، نہ تو دریا میں روانی پیدا کی، نہ اس میں کشتی چلایا، نہ سورج کو منور کیا، نہ چاند کو روشنی عطا کی، مگر صرف ان پانچ کی محبت میں. ان پانچ کی محبت میں. تو پروردگار تو بھی تو ان پانچ سے محبت کرتا ہے، تو بھی تو شیعہ ٹھہرا. سلام پڑھ دیں محمد. تو بھی تو شیعہ ٹھہرا. تو یہ شیعہ اس وقت تھا جب کچھ نہ تھا. اور شیعت کا تذکرہ تو قرآن میں نہیں. قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، لفظ شیعہ آیا ہے قرآن میں. اور اس کے بعد ہم بھی کیا اعتراض کرتے ہیں؟ سب سے پہلے مسلمانوں کے اس نام پہ اعتراض کرو جسے شافعی کہتے ہیں. جسے شافعی کہتے ہیں. شافعی نے کیا کہا؟ لو کانا، توجہ چاہ رہا ہے، لو کانا رفضا حب آل محمد. اگر آل محمد کی محبت دل میں رکھنا رافضی ہونے کی ترکیب ہے. لو کانا رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض. کیا کہا شافعی نے؟ شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت دل میں رکھنا رافضی ہونے کی دلیل ہے تو قسم ہے اس پروردگار کی کہ دونوں جہان گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں. میں رافضی ہوں. اور اسی ضمن میں جناب شافعی نے شعر کہا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. سلام پڑھتے محمد. شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت دل میں رکھنا رافضی ہونے کی دلیل ہے تو قسم ہے اس پروردگار کی دونوں جہان گواہ رہے، جنوں انس گواہ رہے دونوں جہان کے کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں. اور اس کے بعد یہ شعر فرمایا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ علی کی محبت سپر ہے. علی کی محبت سپر ہے. اس چیز کی؟ جہنم کی. اور اس کے بعد کہا کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے کا نام. اور اس سے بڑھ کے کہا حقیقی جانشین محمد مصطفیٰ کا علی مرتضیٰ ہے. اور آگے بڑھ کے کہا علی اس ذات کا نام ہے جو صرف انسانوں کا امام نہیں بلکہ انسان اور جنات دونوں کا امام ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد.
ईमान में ज़ौक़ होता है, जहां ईमान में ज़ौक़ होता है वहीं लोग भटकते हैं। हम भटकने वाली कौम का नाम नहीं है। शिया तो अल्लाह को सिर्फ वहदहु ला शरीक मानते हैं, उस वहदहु ला शरीक को खुदा मानते हैं, और अली को उसकी मखलूक मानते हैं। हम नुसैर नहीं है कि एक वाक़े को देख के भटक जाए। जब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जा रहे थे, फरात के करीब पहुंचे। अब जब फरात के करीब पहुंचे तो न कश्ती है न कोई रास्ता है उबूर करने के लिए। एक मरतबा मौला ने नुसैर को बुलाया, नुसैर यहाँ कहा जाओ फरात के उस मकाम पे जाकर आवाज दो। क्या आवाज दो? जुमजुमा कहते आवाज देना। ये जुमजुमा जब वो आवाज लब्बैक कहे, कहना कि तुम्हें तुम्हारे मौला ने हुक्म दिया है कि बता इस फरात से उबूर करने का रास्ता किधर से है। तवज्जो चाहता इधर से है। गया नुसैर ने जाकर कहा जुमजुमा तेरे मौला ने तुझसे सवाल किया है। एक मर्तबा तारीख बताती है दरियाए फरात से बैक वक्त 7,000 आवाजें बुलंद हुई, लब्बैक या अली, लब्बैक या अली। और 7,000 आवाज बुलंद होने के बाद आवाज आई कि इस जुमजुमा को मौला कायनात चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे जुमजुमे हैं। एक मर्तबा फिर पलटा, मौला ने कहा जाओ, कहना जुमजुमा इब्न कुरकुरा को चाहते हैं। फिर आया, उसने कहा जुमजुमा इब्न कुरकुरा को मौला कायनात चाहते हैं। कहने लगा जुमजुमा इब्न कुरकुरा भी बहुत है दरिया। तो अच्छा आप ही सोचो मौलाना ने आज पता नहीं कौन सा मौजूद उठाया, जुमजुमा कुरकुरा ममूरा सब सुना ही दिया। भाई मैं क्या करूं? मौलाना गुलाम हुसैन साहब ने अपनी किताब में इस वाक़े को नकल किया है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले कुरकुरा ये भी बहुत है। कहा फिर जाके पूछो, कहा जुमजुमा इब्न कुरकुरा इब्न मुरमुरा। अब जो नुसैर आया और नुसैर ने कहा जुमजुमा इब्न कुरकुरा इब्न मुरमुरा को मेरा मौला चाहता है, तलब करता है, तो एक मर्तबा निकल के आवाज दी, बता क्या हाजत रखता है। गाली ने सवाल किया है इस दरियाए फरात से निकलने का रास्ता किधर से है, उबूर करने का रास्ता किधर से है। बस इतना सुनना था। जुमजुमा ने आवाज दिया, तेरी अक्ल को क्या हो गया है नुसैर? तेरी अक्ल को क्या हो गया है नुसैर? मैं 1700 बरस से इस दरियाए फरात में रह रहा हूं। ताज्जुब चाह रहा हूं 1700 बरस से मैं इस दरियाए फरात में रह रहा हूं। जो मेरा नाम जानता है, मेरे बाप का नाम जानता है, मेरे दादा का नाम जानता है, क्या उसे नहीं मालूम कि फरात का रास्ता किधर से है? नुसैर बतवा हैरत से चकराया। बात तो सही है, 1700 बरस से ये मखलूक इस दरिया में है, जिसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम अली ने बताया। क्या उसे ये नहीं मालूम कि रास्ता किधर से आया? आने के बाद कहा या अली जुमजुमा को जिंदा कीजिए। तो सर तुझे वो क्या दे रहा है? कहा गुलाम की ख्वाहिश मौला नुसैर को जिंदा करके दिखाया। जुमजुमा मौला कायनात ने एक मरतबा इशारा किया
झुमझुमा चीटी जाती तस्वीर बना हुआ दरिया से निकल के बाहर आ गया। अब जो दरिया से बाहर आया तो नुसैर कदमों से लिपट गया और लिपट के कहता है या अली आखिरी तो खुदा है। अल्लाह बिल्लाह, यह हमारा अकीदा नहीं है, यह नुसैर का अकीदा है। वो ये कहता है कि मुझे इब्राहिम का वो वाकया याद आ गया जब जनाब इब्राहिम ने नमरूद से कहा था मेरा खुदा तो वो है, मेरा खुदा तो वो है जो ममात को हयात में तब्दील करता है, मौत को हयात देता है, हयात को मौत देता है। ए अली, आपने वही कर दिखाया जो इब्राहिम का रब करता है। जो नहीं मरवाया आपने, वही कर दिखाया जो इब्राहिम का रब करता है। आपने भी मुर्दे को जिंदगी दी है, अब आखिर खुदा है। एक मरतबा मौलाए कायनात ने कहा क्या शिर्क बकता है, खामोश, ये शिर्क की गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती, मैं उसका मखलूक हूँ, वो मेरा खालिक। एक मरतबा जो नहीं माना और इन्हें तलवार निकाली और सबके सामने से कत्ल किया और कत्ल करने के बाद चूंकि मौला का सहाबी था रहम आया फिर जिंदा किया। अब जो जिंदा किया तो यकीन में और इजाफा हो गया। अब कोई चारा नहीं, अब आप ही खुदा। फिर मौला ने कत्ल किया कि शायद तौबा कर ले, फिर उसने ये कहा जिंदा किया। तारीफ बताती है रिवायत की 70 मरतबा मौला कायनात ने उसे कत्ल किया, जिंदा किया। लेकिन जब 70 मरतबा कत्ल कर चुके और आखिरी मरतबा भी वो यही कहता रहा कि आप ही खुदा है, आप ही खुदा है, आप ही खुदा है, तो एक मरतबा अली ने फिर उसे कत्ल किया और कत्ल करने के बाद हुक्म दिया कि इसे जला के राख कर दिया जाए। तवज्जो चाह रहा, अल्लाह रे अली तुम अजमत के सलाम, जिसके इख्तियारात में इतना कुछ था, कहने वाले खुदा कह रहे थे, अली सजदा कर करके बता रहे थे कि कोई माबूद है जिसकी हम इबादत कर रहे हैं। अरे वो कैसे जाहिल थे, फिरौन और नमरूद जिनके पास कुछ नहीं था फिर भी खुदा बन बैठे। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद इस बात को गौर से सुने, अल्लाह अल्लाह है, अली अली। लेकिन हाथों को जोड़ के एक जुमला मैं भी कहना चाहता हूं कि अल्लाह अली को हम खुदा नहीं कहते, अली को हम खुदा नहीं कहते, लेकिन खुदा को अली कहते हैं। हो सकता है कि आपके जहन में ये बात आ रही हो तो मौलाना भी कुछ जैसी बातें कर रहे हो। भाई मेरी गुजारिश है कि मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही है, जहां जहां तक जा रही है, नतीजा सुने बगैर न जाएंगे, वरना वो यही कहेंगे कि शिया भी काफिर है। हम अल्लाह को, हम अली को खुदा नहीं कहते, लेकिन खुदा को अली कहते हैं। दलील दूं, मैं वकील के घर में मजलिस पढ़ रहा हूं, वकील साहब के घर में मजलिस पढ़ रहा हूं, तो बहरहाल दलील के बगैर गुफ्तगू हो ही नहीं सकती है। सलावत पढ़े तो मैं दलील पेश खुदा नहीं कहते, लेकिन खुदा को अली कहते हैं। जुमले की नदाकत को या बारीकी को देखिएगा, जहां यहां आपके सामने अस्माए इलाही लिखे हुए हैं, जरा इसे मुलाहिजा कीजिए। इसमें या अल्लाह लिखा है, या अल्लाह लिखा है, या रहमान लिखा है, या रहीम लिखा है, या करीम लिखा है, या कुद्दूस लिखा है, या बारी लिखा है, या खालिक लिखा है, या मुसब्बिर लिखा है, या मुदब्बिर लिखा है। तवज्जो चाह रहा हूं, या मुदब्बिर लिखा है, या खालिक लिखा है, या मुसब्बिर लिखा है। वही अल्लाह के एक नाम में से अली है। अल्लाह का एक नाम अली है, इसलिए अल्लाह ने अपना नाम अली को दिया। हमने क्या कहा
वली को खुदा नहीं कहते, लेकिन खुदा को वली कहते हैं। एक सलावत पढ़ते हैं। इससे और बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद। अस्माए इलाही में से एक नाम अली है, और अल्लाह ने अपना नाम अपने वली को दे दिया। कहा आज से मेरा नाम मेरे वली का नाम है। ये है अजमत, ये है मंजिलत। जब ना अहल को अहल की जगह पे बिठा दिया जाए तो उसका नतीजा आप सभी हजरात जानते हैं। ना अहल को अहल की जगह बिठा दिया जाए तो उसका नतीजा सब हजरात जानते हैं। इसी तरीके से अली की इतनी फजीलत, अहल के रहते हुए ना अहल को बिठा दिया गया, अहल के रहते हुए ना अहल को बिठा दिया गया। बहरहाल मुश्किलात तो पेश आएगी। एक कजिया उलझा हुआ है। एक औरत है, वो कहती है कि मेरा बेटा नहीं है। बच्चा कहता है कि मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। वो कहती मेरा बेटा नहीं है। औरत के पास गवाह है, लड़के के पास गवाह नहीं। कजिया दरबार खिलाफत में पहुंचा। जब दरबार खिलाफत में पहुंचा, औरत से गवाह तलब की गए। उसने अपने 5 भाई को बुलाकर गवाह पेश कर, एक नहीं 5 गवाह पेश की। तो वकील साहब जरा बताइए, जहां गवाह ज्यादा हो वहां फैसला किसके हक में जाता है? अब जो है गवाह इनके पास, उन्होंने फैसला कर दिया। झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। अगर आइंदा इस तरीके से बदतमीजी की और हमारी तौहीन करने की कोशिश की तो हमको जब तक कर देंगे। कह रहा है कि जनाब मैं इसका बेटा हूं, चाहे जो कसम खिलवा लीजिए। कह रहे गवाह लेकर आई ये औरत, तू कह रहा है कि इसका बेटा है और इनकार कर रही है। तो जिसके सामने पूरी किताब का, जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो, उसके सामने कायनात 5 उंगली की तरह, उसके सामने कायनात 5 उंगली की तरह से सोचने और समझने की जरूरत नहीं होती। बुलाया कजिया अली के पास आया, अहल के पास आया, ना अहल से अहल के पास आया। मौला कायनात ने कहा क्या कहते हो? ये मेरी माँ है। तुम क्या कहती हो? ये मेरा बेटा नहीं। ये कहता है मेरी माँ है, वो कहता है मेरा बेटा नहीं। उसने गवाह में अपने भाई को पेश कर दिया। तो अहल का जरा फैसला देखिए। मौला कायनात ने काजी को बुलवाया। बुलाओ काजी को, कहो कि इन दोनों का निकाह पढ़ दिया जाए, इन दोनों का निकाह पढ़ दिया जाए। जो हकीकी माँ थी उसने देखा कि बेटे से शादी हो नहीं सकती है, तड़प के हाथों को जोड़ के कदमों में गिर गई। यानी यही मेरा हकीकी बेटा है। तू तो अभी गवाह पेश कर रही थी। तब मैं अपने भाइयों की मजबूरी की वजह से गवाह पेश कर रही थी। मेरा भाई इसको इसे कबूल नहीं करते और ये कहते कि तेरा बेटा नहीं, तो इसे तू भी इसका इनकार करते। तो मैं उनकी मजबूरी की वजह से मैं भी इनकार कर रही थी। लेकिन अली ने ऐसा फैसला किया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। कहा काजी से कहा इन दोनों का निकाह कर दे। जब निकाह की बात आई फौरन उसने अपनी बात से वो पलट गई और कहने लगी यही मेरा हकीकी बेटा है। ये है अहल का फैसला, ये है अहल का फैसला। और ना अहल को जब अहल बना दिया जाए, अल्लाह ने कयामत एक वाकया सुना, आप भी महसूस होंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद। जनाब सुलेमान पैगंबर के जमाने में एक शख्स
मस्जिद उठा पैगंबर के पास बार बार आके कहता था कि नबी खुदा मुझे जानवर की आवाज सिखा दीजिए। जो जानवर जिस जबान में गुफ्तगू करते हैं आपके पास ये इल्म है, या नबी खुदा मुझे ये इल्म दे दीजिए। और ये इल्म मखसूस था किससे? जनाब सुलेमान पैगंबर से। और ये नाअहल था, बार बार जाके अहल का हक लेने की कोशिश कर रहा था। जब बहुत ज्यादा इसरार किया, बहुत ज्यादा इसरार किया, तो हुक्म परवरदिगार हुआ सुलेमान इससे कह दो, इकरार ले लो कि अगर इस इल्म के सीखने के बाद कोई नुकसान, कोई जरर पहुंचता है तो इसका जिम्मेदार खुद ये शख्स होगा, क्योंकि परेशान किया हुआ है। ठीक है, तुम इसे इल्म सिखा दो। और इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इल्म सीखने में कोई जरर क्यों है। ये अच्छा है इल्म सीखा जाए, उसमें जरर की कौन सी बात है? जनाब सुलेमान का पैगंबर ये इल्म सिखा दिया और ये इल्म सीख के वहां से चला आया अपने घर। तो इसने अपने घर में भेड़, बकरियां, गाय, तमाम किस्म के जानवर पाल रखे था। बड़ा कंजूस। और इनके हिफाजत के लिए कुछ कुत्ते पाल रखे थे ताकि भेड़िए से इनकी हिफाजत हो सके इनके जरिए। तो जब आया सीख कर कहा चल के जरा जानवरों के पास बैठे कि क्या गुफ्तगू करते हैं आपस में। देखा कुत्ते दरवाजे ही पे मिल गए, दरवाजे ही पे मिल गए। देखा आपस में बातें कर रहे थे। तो घबराओ नहीं, तुम कसीरुल अयाल हो। एक दूसरे से कह रहा है घबराओ नहीं, तुम कसीरुल अयाल हो, हमें खाना बहुत कम मिलता है, लेकिन आज हमारे मालिक की एक गाय मरने वाली है। तवज्जो चाहता हूं, आज हमारे मालिक की एक गाय मरने वाली है। जब वो मरेगी बहरान में फेंक देगा, जब फेंक देगा तो हम उसे खाएंगे। बस इतना सुनना तो इसमें अच्छा इल्म है। नबी खुदा कह रहे थे इसमें जरर होगा, इसमें तो फायदा हो रहा है। उसने कहा तू ना सही, इससे पहले तो मरे, लिया जल्दी से खोला, बाजार में गए, इससे पहले तो मर जाए, जाके फरोख्त कराया। लिया नोट को गिना, गिनने के बाद जेब में रखा। कहता है बड़ा अच्छा इल्म है। नबी खुदा कह रहे थे जरर होगा, इसमें तो फायदा ही फायदा है। फिर आया, जानवरों के करीब दरमियान में बैठा करता था। तो क्या ये बातें करते हैं? ये देखा वही कुत्ते वही बातें कर रहे, ये तो बड़ा बुरा हुआ। मालिक ने जाकर उसे बेच दिया। कहा अच्छा घबराओ नहीं, 2 दिन के बाद पला गया मर जाएगी। अब ये सिलसिला जारी हो गया। तो चाह रहा हूं ये सिलसिला जारी हो गया। ये सुनता रहा और बेचता रहा। तो चाह रहा हूं किसी दिन गाय को बेच के आया, कभी बैल को बेच के आया, कभी भेड़ को बेच के आया, कभी बकरियों को बेच के आया। यानी ये सिलसिला चलता रहा, ये फायदा उठाता रहा। लेकिन ये नबी की दूरअंदेशी बता रही थी कि तुझे इसमें जरर है। वो जाहिरी को देख रहा था, तवज्जो चाह रहा हूँ, वो जाहिरी को देख रहा था। एक दिन जब सब बिक गए तो कुत्ते बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरे अब घबराने की कौन सी बात है, मालिक तो बड़ा चालाक निकला, उसने सबको बेच लिया। लेकिन घबराओ नहीं, कल मेरा मालिक मर जाएगा, कल मेरा मालिक मर जाएगा। अब जो मालिक मरेगा तो उसके लिए जो आवभगत की जाएगी, लोग आएंगे मेहमान बनके, जो खाना पकेगा तो उसमें जो बचा खुचा होगा वो हमें मिलेगा। अब ये परेशान, भाई जानवर को तो बेचाया बाजार में, खुद को कहां जाके बेचता? कोई तवज्जो के साथ बात है सुने, खुद को कहां जाके बेचता? घबराया हुआ नबी खुदा की खिदमत में आया, हाथों को जोड़े हुए, या नबी खुदा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कहा क्या हुआ? कहा मैंने आपसे जो इल्म सीखा था उसकी बदौलत मैंने जाहिरन तो ये सोचा कि मुझे फायदा हासिल हो रहा है, लेकिन दर हकीकत मुझे नुकसान हो रहा था। मैंने सबको बेच दिया, जाहिरी तौर पर फायदा हासिल कर लिया, लेकिन मेरे कुत्तों के कहने के मुताबिक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कल मर जाऊंगा। अब मैं अपने आप को कहां ले जाके बेचूं? तो नबी खुदा ने कहा मैंने तुझसे मना नहीं किया था कि तू इसका नाअहल है, तू इसका अहल नहीं है। तो चाह रहा हूं तू इसका अहल नहीं है, लेकिन तूने जब जबरदस्ती की तो तुझे बहरहाल जाना है, जाने की तैयारी कर लो। कदमों से निपट गया, रोने लगा। तो जनाब सुलेमान पैगंबर ने एक फलसफा बताया कि देख, इंसान है अशरफुल मखलूकात, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया।
اور جتنے بھی مخلوق ہے وہ سب انسان سے پست تر ہے، انسان سے پست تر ہے۔ تو جب انسان پہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو یہ جانور انسان کا صدقہ بن جایا ہے۔ جانور اس لیے تاکید کی گئی ہے، روایتوں میں ہے کہ انسان اپنے گھر میں جانور پالے، اگر کوئی بلا آنے والی ہوگی تو پہلے جانور پہ آئے گی، اگر جانور نہ ہوگا تو مال پہ آتی ہے، مال نہ ہوگا تو جان پہ۔ تو کہا یہ فلسفہ ہے کہ تیرے گھر بلا آنے والی تھی تجھ پہ، وہ گائے کی شکل میں، چونکہ گائے پال رکھی تو لہٰذا وہ مر جاتی تو بچ جاتا، لیکن تو نے سب کو بیچ دیا، وہ بلا برقرار رہی، وہ تیرے اوپر نازل ہوا۔ نپٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا یا نبی خدا مجھے بچا دیجیے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا اس واقعے سے کہ نااہل جو ہوا کرتے ہیں اگر وہ کسی زبردستی کے بنا پہ اہل بن جائے تو دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ نااہل تھا جو نااہل کے جانے کے بعد شام کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں اختیار کرنے کے بعد اس پہ قبضہ جمانے کے بعد بیعت کا مطالبہ حسین ابن ابی طالب سے کر رہا ہے۔ وہ جو شرابی ہے، وہ جو زانی ہے، وہ جو بدکردار ہے، وہ جس کے اندر تمام عیوب پائے جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وقت کا امام ہماری بیعت کر لے، لیکن امام نے انکار بیعت کیا اور اس کے بعد انکار بیعت کیا، جبکہ امام کو معلوم ہے کہ اگر بیعت نہیں کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، بیعت نہیں کریں گے تو علی اکبر کو قربان کرنا پڑے گا، بیعت نہیں کریں گے تو قاسم کو قربان کرنا پڑے گا، بیعت نہیں کریں گے تو گود کے پانے علی اصغر کو قربان کرنا پڑے گا۔ سب منظور ہے لیکن بیعت منظور نہیں۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انکار کرتے کرتے امام کربلا میں آئے، جگہ جگہ پہ فوج یزیدی روک رہی تھی راستہ اور بیعت طلب کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا امام انکار میں جواب دیتے ہوئے اس منزل تک پہنچا جو شہادت کی منزل ہے۔ اور شہادت کی کون سی منزل ہے؟ جہاں صرف 72 ہے اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے۔ جیسے جیسے لشکر آتے جاتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز زمین کربلا کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ صرف زمین کربلا ہی نہیں ہلتی، دکھیاری بہن کا دل بھی ہلتا ہے، بہن کا دل بھی ہلتا ہے۔ یا کون آیا؟ کہا عمر ساتھ کا لشکر آیا۔ یا کون آیا؟ کہا شم کا لشکر آیا۔ زینب پوچھتی جاتی ہے، حسین بتاتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے یا کیا آپ کو چاہنے والا کوئی نہیں جسے آپ خط لکھ کر بلا لیں؟ اتنا سننا تھا تمام خاموش بیٹھ گئے۔ کہا بہن اس عالم غربت میں کسے مدد کے لیے بلایا، کسے مدد کے لیے بلایا؟ تو زینب بولتی ہے بھائی آپ کا بچپن کا ساتھی حبیب کوفے میں ہے کہ بھیا تو نہ صحیح لیکن نامہ لکھ کر حبیب کو بلا لیجیے۔ بہن کے کہنے کے مطابق امام مظلوم کربلا نے کربلا کی زمین پہ بیٹھ کے غربت کے عالم نے قلم کو اٹھایا، لکھا
मिनल हुसैन इब्न अबी तालिब इला रजुल फकीह हबीब इब्न गजाली। देखिए वक्त का इमाम हबीब को मर्द फकीह कहते खिताब कर रहा है। जरा अंदाजा लगाइए, वो हबीब जिसे वक्त का इमाम फकीह कहते खिताब कर रहा है, और इमाम ने खत को लिखा, कासिद को बुलाया, कासिद खत लेके कूफे चला चला। कहता है कासिद खत लेके कूफे में गया, और जब खत लिख रहे थे मेरे मौला, तो ज़ैनब ने कहा था, भैया खत में मेरे जानिब से तहरीर पढ़ा, बहुत क्रिया करेंगे, जुमले को सुनो। कहा भैया मेरी जानिब से एक तहरीर बढ़ा दीजिए। कहा बहन जो तहरीर को, कहा मेरी जानिब से हबीब को सलाम लिख दीजिए और कहिएगा हे हबीब अगर आने का इरादा हो तो जल्दी आना, ऐसा न हो कि गर्मी गुजराल इस करबल के मैदान में रुक जाए। इमाम ने तहरीर में लिखा, इजाफा किया, कासिद को किया, कासिद लेके कूफे आया। तारीख बताती है कूफे के हालात बड़े पुराशोभ हैं, कूफे के हालात बड़े पुराशोभ है। कासिद छुपते छुपाते हबीब इब्न मज़ाहिब के घर पहुंचा। तारीख बताती है दक्कुल बात किया, और जैसे ही दक्कुल बात किया वैसे ही हबीब खाना खा रहे थे, लुकमा गिलोगीर हुआ। अब जो लुकमा गिलोगीर हुआ उठ के दरवाजे पे आए। अब जो दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, कासिद है। कहा क्या लाया है? कहा हुसैन इब्न अली का खत लाया हूं। हुसैन इब्न अली का खत लाया हूं। मौला का नाम सुनते हुए एक मरतबा हबीब की आंखों में अश्क आ गए। तहरीर नामे को लिया, मुमकिन हो सके तो हुसैन की मदद कर। इतना सुनना था कि हबीब गिराते जाते हैं, रोते जाते हैं। अपने आप को संभाला, आंखों को आंसुओं को पूछा, खत किए हुए बाकी वो गुजरा। पटवा सरजा ने पूछा कौन आया? कहा कासिद हुसैन था। कहा क्या चाहता, क्या लाया? कहा हुसैन का खत लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा हुसैन ने मदद के लिए, नुसरत के लिए बुलाया। बस इतना सुनना था। सरजा ने पूछा क्या इरादा है अभी, तुम सब झुकाए खड़े हो? तो पटवा हबीब कहते हैं सरजा मैं ये चाहता हूं कि इस जन्म मैं बिल्कुल किनारे हूं। इतना सुनना था कि मरतबा टीवी को हबीब कुछ तो शर्म करो, ये जो जान तुम्हारे जिस्म में है ये हुसैन इब्न अली की मरहूम मिन्नत है। वाकया सुने तवज्जो के साथ। कहीं जान जो तुम्हारे जिस्म में है ये हुसैन इब्न अली की दी हुई है। बचपन का वाकया है कि मज़ाहिर में रसूल इस्लाम की दावत की थी, मज़ाहिर में रसूल इस्लाम की दावत की थी और हसनैन अलैहिस्सलाम को बुलाया। हबीब इतना चाहते थे हुसैन को, इतना चाहते थे, तारीख बताती है कि जब हुसैन चलते थे तो हबीब पीछे पीछे इमाम के कदमों की हाथ उठा के अपने आंखों पे रखते थे। कहता है कि सब तो नजर आते लेकिन मेरा दोस्त हबीब नजर नहीं आता। मज़ाहिर कहते हैं कि आप खाना गोश्त फरमा लीजिए, हबीब यहीं कहीं होंगे। इमाम ने इसरार से नहीं, हबीब को बुलाइए, उस वक्त हुसैन खाना न खाएगा। अब जब इसरार पढ़ा हुसैन इब्न अली का तो एक मरतबा मज़ाहिर ने सारा वाकया बयान कर दिया। कहा हबीब की जनाजे को मेरे सामने चढ़ाया जाए। कहा हुसैन इसको देख रहे हो? कहा मैं देख रहा हूँ। कहा ये तुम्हारे बचपन का साथी है। कहा मैं जानता हूँ। कहा ये हुसैन एक दिन ये तुम्हारे काम आएगा, एक दिन ये तुम्हारी नुसरत करेगा। और ये कहते इमाम रसूल इस्लाम ने हुक्म दिया और दुआ की, हबीब जिंदा हो गए। हबीब जिंदा हो गए। ये वाकया ज़ौजा हबीब को भी मालूम था। इसी वजह से हबीब की ज़ौजा कह रही है कि जो तुम्हारे जिस्म में जान है ये हुसैन इब्न अली के सदक़े में दी हुई जान है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो? एक मरतबा ज़ौजा को करीब बुला के सीने से लगा दिया, शफ़क़त से सर के हाथ पे फेरा। कहा ये बीवी मैं तेरा इरादा मालूम करना चाह रहा था, ये बीवी मैं तेरा इरादा मालूम करना चाह रहा था। मुझे यकीन हो गया कि तू भी हुसैन इब्न अली की चाहने वाली है। और ये कह के हबीब ने गुलाम को बुलाया और कहा
कहा गुलाम इस घोड़े को ले जा, इस रहबार को ले जा और फला मकाम पे खड़ा है, इसलिए कि कूफे के हालात बड़े पुराशर हैं। अगर मैं घोड़े को लेकर निकलता हूँ तो शायद इतने ज्यादा के सिपाही को समझ ले पाऊंगा और यही जंग हो जाएगी। बस इतना सुनना था कि गुलाम रहबार को लेके एक मकाम पे चला गया, इंतजार करता रहा। हबीब छुपते छुपाते कदमों से होते हुए उस मकाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देर होती जा रही है, एक मरतबा क्या देखा कि घोड़ा रो रहा है, आंखों से आंसू जारी है। एक मरतबा आगे बढ़ते घोड़े के पुष्ट पे हाथ रखते गुलाम कहता है, ए घोड़ा, ए अश्तबा होगा, तू रोता क्यों है? अगर हबीब किसी वजह से ना आ सके तो मैं तेरी पुष्ट में सवार होकर नुसरत इमाम को देता। बस इतना सुनना था कि हबीब, इतनी ही गुफ्तगू हो रही थी कि हबीब पीछे से आते हुए नजर आए। हबीब जब करीब आए, घोड़े पर सवार हुए, गुलाम से कहा जब मैंने तुझे खुदा ने आजाद किया। रावी कहता है कि एक मरतबा गुलाम निकल गया, ये आका जिंदगी भर अपनी खिदमत में रखा, जब सआदत और शहादत किस्मत में आई है तो मौला अपने से दूर कर रहे हो, मौला मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुलाम भी हमरा हुआ, ये काफिला चला। तारीख बताती है कि करबला में जैसे ही वारिद होना चाहता है, इधर मेरा मजलूम इमाम कभी खैमे में जाता है, कभी बाहर आता है, कभी खैमे में जाता है, कभी बाहर आता है, कभी ज़ैनब खैमे के दरवाजे पे, कभी अंदर। एक मरतबा किसी ने पूछा, तड़प के क्या किसी का इंतजार है? भाई किसी का इंतजार है? मेरे मौला ने कहा बचपन का साथी हबीब आ रहा है। एक मरतबा कूफे की जानिब से एक गर्द उड़ी, अब जो गर्द छड़ी क्या देखा, हबीब चले आ रहे हैं। इमाम ने जनाब अब्बास को बुलाया, अली अकबर को बुलाया, कासिम को बुलाया और मोहम्मद को बुलाया, आओ चल के बचपन के साथी हबीब इब्ने मज़ाहिर का इस्तकबाल करें। अल्लाह अकबर। खुदा आपको किसी गम में ना उलाए सिवाय हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के। देखिए हक़ गिरिया अदा करना है। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर कौन है? हुसैन के बचपन के साथी है हबीब, हुसैन के बचपन के साथी है हबीब। हबीब ने जैसे ही देखा कि मेरा मौला चला आ रहा है, हबीब एक मरतबा एहतराम में घोड़े से नीचे उतरने के बाद घोड़े को रिहा किया और कदम बढ़ाते हुए दरवाजे पे, खैमे के दरवाजे पे एक बीबी ने आके कहा, ए हबीब तुझे शहजादी सलाम कहती है। बस इतना सुनता था, हबीब ने सर पीटा। अल्लाह अकबर। ये वक्त आ गया कि शहजादियां गुलाम को सलाम कहलवाए। खुदा आपको किसी को मिला रहा है सवाल हमें अहले सलाम की और ये खुदा इन आंसुओं पर रहमत नाज़िल करे। बस जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। जनाबे हबीब ने सर और सीना फूटा। तारीख बताती है कि जब बाजारे जंग मैदान जंग गर्म हो गया तो नमाज का वक्त आया। अबू समामा सैदाबी ने आगे बढ़ के कहा, मौला नमाज का वक्त है, ज़ोहर का वक्त आ गया है, हम ये चाहते हैं कि आखिरी नमाज आपकी इब्तिदा में अदा की जाए। इमाम ने अबू समामा सैदाबी से कहा, खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। और कहने के बाद कहा कि सफ लगा दी जाए, नमाज अदा होगी। तुम्हारे साथ से कहलवाया कि अपने लश्कर से कहो कि तीर अंदाजी रोक दे, हम नमाज अदा कर ले। एक मतलब हसीन आगे बढ़ा, बढ़ते कहता है हुसैन ये नमाज फायदा लगेगी। बस इतना सुनना था, हबीब को फैज़ आ गया। जलाल के आलम में हबीब आगे बढ़े, कहा हसीन क्या बकता है? अरे जिसके घर से नमाज को नमाज मिली, नमाज हुई तो उसके लिए कह रहा है कि नमाज फायदा न पहुंचाएगी। एक मरतबा हबीब आगे बढ़े, इमाम ने सफ लगाई और कहा ज़ुहैर और सईद आगे खड़े हो जाओ, मैं नमाज अदा कर लूं। तारीख बताती है कि ज़ुहैर और सईद खड़े रहे, नमाज अदा होती रही। ज़ुहैर और सईद इश्क की नमाज अदा कर रहे थे। ये पहला मौका है जो कोई इमाम से आगे खड़ा हुआ था। तारीख बताती है ज़ुहैर और सईद कभी अपने सीने पे, कभी सईद आगे बढ़ते, कभी ज़ुहैर आगे बढ़ते, तीर को रोकते हैं। एक मतलब तारीख बताती है इमाम ने जैसे ही सलाम को फेरा, नमाज तमाम हुई। इधर सईद तेर आगे गिरे, उधर ज़ुहैर तेर आगे गिरे। मेरा मजलूम इमाम आगे बढ़ा, बढ़ के दोनों के सर को अपने जानों पे रख के एक मतलब रमते जान बाकी थी। एक मतलब सर को सहलाते रहे। सईद ने कहा मौला क्या मैंने हक
कहते 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 मौला ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा हो। मतलब मौला कहते हैं ये सही कितना खुशनसीब है, अरे ये मेरे नाना रसूल खुदा है, तेरे सर में तेरे बालों में उंगलियां फेर रहे हो। ये सही जरा बड़ नाना की खिदमत में सलाम कर। एक मतलब शहीद कहता है मेरे मौला ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरा दाहिना बाजू सहना रहा है, दाहिना बाजू सहना रहा है। इमाम कहते हैं सईद ये मेरे बाबा ये मुर्तजा है, इन्हें बढ़ते सलाम कर। मतलब शहीद कहते कहते कहता है ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा बाया बाजू को सहना रहा हो। इमाम कहते हैं ये मेरे भाई हसन मुस्तफा है, अरे खुश नसीब है ए सईद कि तुझे पंजतन पाक लेने के लिए आए हैं। एक मर्तबा शहीद तड़प के कहता है ए मौला अरे कुछ ऐसा महसूस हो रहा कि पैरों की जानिब से एक बीवी चली आ रही है। इमाम ने कहा सही, अरे अपने पैरों को समेट ले, अरे ये तो मेरी दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा, मेरी माँ फातिमा ज़हरा आ रही है। सईद ने पैरों को समाटा समेटा। एक मर्तबा सईद की रूह कफ़स अंसरी को परवास कर गई। इधर हबीब इब्ने मुज़ाहिर जंग कर रहे थे, जंग करते करते हबीब को ने आवाज दी ए आका, अरे से गुलाम का सलाम है आखिर। अब जो करीब पहुंचे क्या देखा, अरे बूढ़ा सहाबी जख्मों से चूर है, खून में डूबा सहाबी। इमाम ने हबीब को संभाला, ए हबीब अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, ए हबीब तूने हक़ रफ़ाक़त अदा कर दिया, ए हबीब तुमने हक़ दोस्ती अदा कर दी, ए हबीब अरे जाओ नाना तुम्हें जाए कौशल, ए हबीब हम भी तुमसे मुलाकात